انہوں نے پوری اکانومی برباد کر دی ہے، ہر چیز۔ تو ان کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیا، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ تو ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے، سپورٹ کسی کو بھی نہیں کرتا میں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک تو ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے بندہ۔ کوئی بہتر نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے، عمران خان ہمارے قوم کے لیے ایک ہیرو تھا، تو وہ ہیرو بننا چاہ رہا تھا، لیکن یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ ہیرو بننے نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں بننے دے رہے؟ نون لیگ والوں نے کیا کیا؟ عمران خان جو ہے نا وہ اپنی غریب قوم کے ساتھ تھا، بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ اور وہ لیکن اگر پاکستان میں اگر آپ ایسے کہہ رہی ہیں کہ وہ چور ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے سزا ملی، لیکن جس کو پہلے سزا ملی اس کی سزا تو بری ہونی چاہیے نا۔ تو پھر خان صاحب کی یہ بھی سزا انصاف تو پوری نہیں نا ہوا۔ خان صاحب کی بھی سزا پوری ہونی چاہیے۔ تو ہاں ہونی چاہیے، اگر وہ چور ہے پھر سزا پوری ہونی چاہیے۔ ہاں تو کیس تو ثابت ہو گیا نا ان پہ۔ وہ تو چور نے کبھی کہا کہ میں نے چوری کی ہے؟ پھر تو خان صاحب بھی یہی کہتے ہوں گے، خان صاحب بھی چور ہوں گے، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ نہیں ہمیں نے نہیں کیا کچھ۔ خان صاحب نے جو چیز لے ہے وہ سچ وہ سامنے آ جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے، اب اس نے اگر گھڑی لی ہے اس پہ 3 سال کی سزا، چلو ٹھیک ہے وہ سائڈ پہ، تو جنہوں نے گاڑیاں نکلوائی ہیں اور جو چیزیں لی ہیں وہ ان کو کیوں نہیں سزا ملی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ قطرن مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ خان صاحب کو سزا ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو لندن میں نون لیگ ورکرز کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب غدار ہے، کیا یہاں پاکستان کے عوام کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب غدار ہے؟ دوسری طرف کیا پاکستان کی عوام کی رائے ہے کہ کون سی پارٹی کا مستقبل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، نون لیگ یا پی ٹی آئی؟ تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں لوگوں کی رائے۔ بالکل بھی نہیں، کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ ایک نیک بندہ، ایک بندہ اسی لیے ان پہ کیس ثابت ہو گیا۔ تو چوروں کو وہ آزاد کر رہے ہیں اور جو ایماندار بندہ ان کو وہ جیل میں ڈال رہے ہیں۔ وہ بھی جیل یہ میں انصاف نہیں ہے، وہ بھی جیل میں رہے۔ وہ جیل میں رہے تھے لیکن بھاگ گئے، یہ انصاف ہے پاکستان کا؟ آئی تھنک جتنا عرصہ خان صاحب کو اندر ہے، جیل میں ہوا ہے، وہ اس سے زیادہ عرصہ رہے ہیں اندر۔ تو رہے نا، جتنی ان کو سزا ملی ہے 10 سال وہ انہوں نے پوری کی نہیں، اتنی تو نہیں کی، لیکن چلے گئے۔ وہ جتنی سزا ملی اتنی تو پوری کر رہے ہیں نا وہ۔ آپ نے نواز شریف کی بات کی ہے، جی، ان کا میڈیکل تھا، ٹھیک ہے، ان کا میڈیکل کہاں سے ہوا ہے؟ شوکت خانہ مطلب ڈاکٹرز نے ہی کہا نا کہ وہ بیمار ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ؟ لیکن علاج کب تک؟ وہ تو ادھر جا کے بیٹھ گیا ہوا، چور بھاگ گیا ہوا۔ چور بھاگ گیا ہوا ہے، تو خان صاحب نے بھی تو کرپشن کیا نا، کیا وہ چور نہیں ہے؟ نہیں، کیوں نہیں چور؟ فضول الزام لگائے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اگر چوری کرے تو چور ہے، اگر دوسرا انسان آپ کو نہیں پسند اور وہ لیکن اگر پاکستان میں اگر آپ ایسے کہہ رہی ہیں کہ وہ چور ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک ہے سزا ملی، لیکن جس کو پہلے سزا ملی اس کی سزا تو پوری ہونی چاہیے نا۔ تو پھر خان صاحب کی یہ بھی سزا انصاف تو پوری نہیں نا ہوا۔ خان صاحب کی بھی سزا پوری ہونی چاہیے۔ تو ہاں ہونی چاہیے، اگر وہ چور ہے پھر سزا پوری ہونی چاہیے۔ ہاں اگر تو کیس تو نہیں ثابت ہو گیا نا ان پہ۔ تو نہیں نا ثابت ہوا۔ کیوں نہیں ثابت ہوا؟ ہو نہیں گیا ہوا۔ تو اسی لیے سزا ہو گیا نا۔ اب یہ تو آپ ثابت ہوا تو ان کو سزا ہوئی نا۔ تو سر جن پہ پہلے ثابت ہوا ہے ان کو سزا پوری ملنی چاہیے۔ اگر ان کو پوری سزا ملی ہے تو پھر ان کو بھی قید کرنا چاہیے، لیکن وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، ایک بندے نے چوری کیا ہے وہ بھاگ گیا، لیکن دوسرے بندے وہی اس کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ عوام نکلے تو خان صاحب نہیں بھاگیں گے؟ ہیں؟ خان صاحب نہیں بھاگیں گے؟ پاکستان میں نا بھاگے ہیں؟ نہیں بھاگیں گے، نہیں، اتنا یقین؟ اتنا یقین ہے۔ اب جس طرح کل آزادی کا دن تھا، جی۔ کل لوگوں نے نعرہ لگایا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ لوگوں کو کیسی آزادی چاہیے؟ ایک سچا جب لیڈر ایک اکیلا شیر رہ جاتا ہے، سارے ایک طرف ہو گئے ہیں، اس کو غدار ثابت کر دیا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے بس۔ نہیں نا، مطلب کیسی آزادی چاہیے لوگوں کو، یہ پوچھ رہی ہوں۔ ذاتی عمران خان آئے، وہ حکومت میں آئے، جیسے وہ صحیح کام کر رہا تھا ویسے کرتا رہے۔ یہ کون سا صحیح کام کر لیا انہوں نے؟ کیا صحیح کام نہیں کیا آپ بتائیں؟ آپ بتائیں کون سا کیا؟ جو اس نے کام کیا، اکانومی نیچے آئی ہے ہماری، سارا کام اس نے صحیح کیا۔ وہ کیا نہیں کیا اس نے، بس یہ بتائیں۔ ان کی حکومت میں پیٹرول کتنا تھا، مہنگائی کتنی تھی، اب دیکھیں اب کتنی ہے۔ ان سے پہلے نواز شریف کا دور تھا، ان کے دور سے کمپیئر کر لیں ان کو۔ جب عمران خان کا دور تھا تب جو مہنگائی تھی، یہ پٹواریوں نے جو کہا کہ ہاں ایسے مہنگائی ہوگی، عمران خان آیا اتنا مہنگا کر دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد ڈبل ریٹ ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پہلے عمران خان سے پہلے بھی تو چیزیں سستی تھی نا، عمران خان کے دور میں بھی بہت مہنگی ہوئی تھی۔ جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے تب ان کو کیا کیا تھا، تب یہ کیوں نہیں مانے؟ اب ان کا دور ان کے دور میں بھی ہوئی مان تھی، رہے ہیں۔ ان کے دور میں بھی ہوئی تھی مہنگائی، خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہاں تھی۔ ٹھیک ہے ہوئی، لیکن تب یہ نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ چور ہے، یہ پیسہ کھا رہا ہے پاکستان کا، مہنگائی خود کر رہا ہے۔ لیکن اب جب ان کا دور ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ مہنگائی پیچھے سے ہو رہی ہے، باہر سے ہو رہی ہے، ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آزادی کے دن کے بعد اب پی ٹی آئی اور ان کے ورکرز کو آزادی ملے گی؟ جی کیسے؟ عمران خان آزاد ہوگا۔ اور اگر نہ ہوا تو
हमें नहीं होगा, आप देखेंगे। और अगर हुआ ना हुआ तो तो सर यही तो चैलेंज है ना, करके दिखाएंगे हम कैसे आवाम सड़कों पर निकलेगी? इंशाल्लाह। तो अभी तक क्यों नहीं निकली? इतने दिन तो हो गए उन्हें। जब निकलती है फिर आपका क्या ख्याल होता? फिर तो अभी क्यों नहीं निकले? अभी क्यों नहीं निकले? आप जैसे लोग ही गालियाँ दे रहे हैं। आपने किस जर्नलिस्ट को गालियां देते देख लिया? सर आपको नहीं मैं कह रहा, बाकी भी बहुत हैं। मैं आपको जानता नहीं, आपको मैं कैसे कह सकता हूँ? जिनको मैं जानता हूँ वो कहते हैं। तो फिर आप इस तरह किसी पे नहीं कह सकते ना। अभी तक तो लोग नहीं ना निकले पीटीआई के, मैं ये बात कर। निकलेंगे इंशाल्लाह। कब निकलेंगे? जब खान साहब की सजा पूरी हो जाएगी। हमें सज़ा पूरी हो जाएगी। सज़ा अगर सही सज़ा दी गई है फिर पूरी हो, अगर ये गलत सज़ा दी गई फिर पूरी नहीं हो। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई का मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है? नहीं, हो भी सकता है, जिस तरह वो कैद हैं और अगर उनकी सजा भी पूरी हो तो फिर आप इलेक्शन होने वाले बस। जिस तरह उन्हीं के थे ना जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली है। यार हर बंदा अब पटवारियों की तरफ हो रहा है बस। नहीं, खान साहब गद्दार होते तो यहाँ पे इस टाइम वो पाकिस्तान से बाहर चले गए होते, क्योंकि दो साल मतलब 1.5 साल उनकी हुकूमत रही है, उसमें वो किसी भी तरीके से करके पाकिस्तान से चले गए होते। वो भी लंदन या अमेरिका वगैरह में कहीं उनके फ्लैट वगैरह होते और वो वहाँ रह रहे होते, ये जेल में ना रह रहे होते। लेकिन सजा तो उनकी हुई है ना, तो आप क्यों नहीं लगता कि वो गद्दार है? उन पे केस साबित हो चुके हैं। केस साबित होना, उन पे भी तो केस साबित हैं। तो लेकिन अब इनकी बात हो रही है। हाँ, वो भी हैं, उनको भी सजा हुई है पहले। केस साबित तो अपने केस क्यों ख़त्म कर लिए? एक घड़ी लेने पे 3 साल की सज़ा हो सकती है, तो उन्होंने भी तो गाड़ियाँ निकलवाई हैं। ये कैसी अदलिया है कि अपनी हुकूमत में आके उनको ऐसे करके झूठे केस में डाल के उसमें कर दिया। केस कोई सच तो नहीं है। अपनी गवर्नमेंट में अपने जज जो हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, तो फिर इस तरह तो नहीं ना होता। लेकिन शहबाज शरीफ ने जाते हुए ये कहा है कि हमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो चोर ने कभी कहा कि मैंने चोरी की है? फिर तो खान साहब भी यही कहते होंगे, खान साहब भी चोर होंगे, वो भी कहते होंगे कि नहीं मैंने नहीं किया कुछ। खान साहब ने जो चीज़ ले हो सच वो सामने आ जाती है। लेकिन एक चीज़ है, अब उसने अगर घड़ी ली है उस पर 3 साल की सज़ा, चलो ठीक है वो साइड पे। तो जिन्होंने गाड़ियाँ निकलवाई हैं और जो चीज़ें ली हैं वो उनको क्यों नहीं सज़ा मिली? उससे पहले भी तो गाड़ियाँ निकलवाई हुई हैं 1998 में। वो ना कल ही न्यूज़ में आ रहा था कि उन्होंने भी गाड़ियाँ ली हैं, पूरे नाशपति तक के, पाइनएप्पल तक आई हुई थी, तो उस पर भी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर तो उन्होंने परचेज़ किए ना। पर खान साहब ने कौन सा क्या किया? तो उन्होंने तो सेल कर दिया है दूसरे मुल्क। जब एक चीज़ आपकी हो गई है तो फिर आप उसको सेल करो या जो मर्ज़ी करो, वो तो आपकी हो गई। लेकिन उसी कंट्री को देखें आप, अब आपको कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, आप वही गिफ्ट उसी जिसने दिया उसी के दोस्त को अगर गिफ्ट कर देते हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? बुरा लगने का तो आप गाड़ियाँ खरीद के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गाड़ियाँ पहले ये बताइए, आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये तो आप खान साहब की हिमायत करने के लिए कह रहे हैं ना कि नहीं लगेगा बुरा। खान साहब की हिमायत और वो तो फिर हम हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ना। अब एक चीज़ आपको मिली है तो आप उसका चाहे जो मर्जी आप उसको बेचें, इस्तेमाल करें या फेंक दें, वो तो एक अलग साइड पे आ जाती है ना। तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी के दिन के बाद क्या पीटीआई और उनके वर्कर्स को आज़ादी मिलेगी? उनको कहाँ मिलनी है अभी तक? उनको दिया, आज वो न्यूज़ पे आ रहा था कि वो आगे इलेक्शन है तो वो अपनी वो नहीं कर सकते, कंपेन नहीं चला सकते। ये कैसी आज़ादी? उनको मिले तो फिर है ना इलेक्शन। तो आपको उम्मीद भी नहीं है कि मिलेगी? मिलनी चाहिए, लेकिन उम्मीद लगती नहीं है कि मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन करवा के आप देख लें, फेयर इलेक्शन, वो तो आप जिससे भी यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं सबसे किसी से भी पूछ लें, आपको पता चल जाएगा किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। हो सकता है फेयर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान भी आगे आ जाए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, करवा के देखें ना, हो भी सकता है, जब होगा फिर हम भी देखेंगे। क्योंकि अगर नून लीग जीत जाती है तब पीटीआई वाले कहते हैं कि इन्होंने धांधली की, ठीक है। अगर पीटीआई जीत जाती है तो नून लीग वाले कहते हैं धांधली की। फेयर इलेक्शन होंगे कैसे, ये आप बताएं पहले। फेयर इलेक्शन यहाँ पे हुए नहीं, कभी हुए हो तो वो बताइए। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों में, यहाँ के अवाम में इंसाफ नहीं है तो वड़ों में कैसे होगा? कैसे इंसाफ? अवाम में इंसाफ करने वाले कौन है? यही लोग हैं ना अवाम में। इंसाफ अवाम एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करते, एक दूसरे का हक खा लेते हैं, जहाँ तक उनकी पहुँच होती है करप्शन कर लेते हैं, फिर आगे पीछे क्या रह गया? जब ऊपर से ऐसे होंगे तो फिर नीचे तो सारी अवाम होगी, या नीचे से सीखो ऊपर तक। ये नहीं कहा जाता कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम, ये कहा जाता है जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। हाँ, तो ये भी बात ठीक है आपकी, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। लेकिन फिर भी जब अदलिया ऊपर से ठीक होगी तो भी नीचे तक लोग फिर ठीक हो जाएंगे। तो आपको किस पार्टी का मुस्तकबिल ख़त्म होता नज़र आ रहा है, नून लीग या पीपल्स पीटीआई? पीटीआई का मुस्तकबिल ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लग रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कौन आगे आ सकता है? अगर पीटीआई का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया तो कौन आगे आएगा? यही नून लीग, जाहिर सी बात। तो पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो न्यू है अभी। मुश्किल है, अभी न्यू पार्टी 26 साल लगे इनको आगे आने में, 1 साल में उनको मौका दे दें। वही सारे लोग हैं जो इसके साथ आए थे, ऐसे नहीं होता। तो अगर
पी टी आई का मुस्तकबिल समझो ख़त्म हो गया, ठीक है, आप किसको वोट करेंगे? मेरा भी वोट बने तो सही। हैं गद्दार, क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आप देखें ना, उन्होंने पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी है, हर चीज़। तो उनके बाद शहबाज शरीफ साहब ने किया, वो क्या हुआ? वो तो बेड़ा गर्क हो गया ना। तो ठीक कोई भी नहीं है, सपोर्ट किसी को भी नहीं करता मैं। क्यों नहीं करते? कोई एक तो होता है ना जिसके बारे में आप सोचते हो कि ये मुल्क के लिए बेहतर है बंदा, कोई बेहतर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो बात करता है उसकी कोई बात नहीं ठीक होती। मतलब जिसने जो भी बात की है आज तक, जो भी वादा किया है, कोई पूरा नहीं किया है। तो क्या पाकिस्तान की अवाम ऐसे करती है अपने वादे पूरे? नहीं, अवाम भी ऐसी है। सर से होता है ना, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। बिल्कुल। तो आपने कभी ऐसा किया है कि आप अपने वादे पूरे करते हो सारे? मैं करता हूँ, इतना यकीन कैसे कर सकते? क्योंकि हो सकता है आपने भी बहुत ऐसे प्रॉमिसेस तोड़ दिए हों नहीं। जिस तरह हमारे लीडर्स करते हैं। मैं वो वादा ही नहीं करता जो मैं ना पूरा कर सकूँ। अब आपको पता है कि कल आज़ादी का दिन गुजरा है, तो आज़ादी के दिन पे लोगों ने एक नारा लगाया कि हमें आज़ादी चाहिए। कैसी आज़ादी चाहिए अभी भी लोगों को? लोगों को बस आज़ादी ही चाहिए। अभी मुल्क आज़ाद है, तकरीबन अलग मुमलिकत है, अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, अभी भी कौन सी आज़ादी चाहिए? बस पार्टी बाजी है जो है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आज़ाद ही है सब, क्या है? तो मतलब ये गलत करते हैं ना। गलत करते हैं। तो अब फिर सही कौन है हमारे मुल्क में? कौन है सही? मेरी नज़र में कोई भी नहीं। अच्छा, आपके अलावा बाकी सब बुरे हैं? हुक्मरानों की बात कर रही हैं तो बुरे हैं। क्या? अगर हुक्मरानों का सिर्फ पूछ रही हैं तो वो तो बुरे हैं सारे। और अवाम? अवाम ठीक है, मिक्स ही है अवाम, परसेंटेज है लोगों की। तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी के दिन के बाद क्या पीटीआई और उनके वर्कर्स को आज़ादी मिल सकती है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं मिल सकती? साबित हो चुके हैं सारे गलत। पहले तो नून लीग वाले भी गलत साबित हुए थे ना। बिल्कुल, तो यही तो सियासत है। पहले वो उन्हें जेल की तरफ लाया, अब ये उसे जेल की तरफ लाए हैं। नहीं, जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए तब खान साहब की हुकूमत नहीं थी। लेकिन फ़ौरन आए तो थे ना खान साहब। हाँ, वो क्योंकि जाहिर सी बात है वो नाअहल हो गए हुए थे, उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा उनका समझो बदनाम हो गई हुई थी, तो जाहिर सी बात है किसी नए इंसान नहीं आना था ना। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, पीटीआई या नून लीग? पीटीआई नून लीग का भी हो सकता है। हो सकता है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में महंगाई जितनी हुई है, उनका भी फ्यूचर ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आगे आ सकती हैं? आ सकती है। कौन सी पार्टी इन दोनों में से आगे आ सकती पीपल्स पार्टी। है? आना चाहिए उन्हें। जिसके वोट होंगे वो तो आ ही जाएगा ना। बस आपकी राय क्या है, क्या आना चाहिए पीपल्स पार्टी को आगे? आना चाहिए, सारे जब आ चुके हैं तो पीपल्स पार्टी भी आ जाए। तो आपको लगता है कोई उम्मीद है उनसे कि वो अच्छा काम कर सकेंगे? उम्मीद तो किसी से भी नहीं है, पर देख ही सकते हैं। तो फिर ऐसे करते सबको छोड़ के ना आपको दे देते हैं खुदा। नहीं, मैं नहीं संभाल सकता, क्यों? क्योंकि मैं अपने काम नहीं संभाल सकता, हुकूमत क्या संभालूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप खुद से उम्मीद नहीं रख सकते कि आप मुल्क संभाल सकते हैं या तो फिर किसी और से उम्मीद कैसे रख सकते हैं? क्योंकि उसके पास इख्तियार है। तो आपने किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करना? नहीं, फिर भी एक राय होती है, यह हक होता है ना हर शहरी का वोट का। वोट का अगर वोट दिया जाए ना किसी को, तो वो होना चाहिए मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को इतनी उम्मीद है उनसे? उम्मीद नहीं है, मतलब आए नहीं ना कभी लेकिन मौका देना चाहते हैं। मौका। वैसे पीपल्स पार्टी भी पहले रह चुकी है काफ़ी। तब हमारा टाइम नहीं था। बिल्कुल ऐसा है, इमरान खान हमारे कौम के लिए एक हीरो था, तो वो हीरो बनना चाह रहा था, लेकिन ये जो नून लीग वाले हैं ये हीरो बनने नहीं दे रहे। क्यों नहीं बने दे रहे? नून लीग वालों ने क्या किया? इमरान खान जो है ना वो अपनी गरीब कौम के साथ था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये जो नून लीग वाले हैं, नून लीग वालों ने कमाई की भी है और करवाई भी है, लेकिन क्या है कि नून लीग वाले जो है ना करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये करप्शन को रोकना चाह रहा है, इस वजह से जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और कोई मसला नहीं। क्या किया खान साहब ने गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कोशिश कर रहा था, तो अगर खाली हम थोड़ा- कोशिश से काम नहीं ना बनता, काम करना भी पड़ता है। वो तो सारी बात है, करेगा तो फिर ही आगे आएगा ना। काम तो कर रहा था अंदर ग्राउंड, लेकिन उसको आगे आने नहीं दिया उन्होंने, इमरान खान। उन्होंने ज़बरदस्ती पीछे खींच लिया। बस ऐसा ही है।
पैसे दे दे के तो उन्होंने सारे काम करवाए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे लिए वो अच्छा लीडर था, जितने बाहर के मुल्क में रहने वाले हैं सारे जो हैं उसको लाइक करते हैं, और उसके अलावा जो है ना पाकिस्तान के लिए वो अच्छा है। तो क्या नवाज शरीफ वगैरह अच्छे नहीं हैं? उन्होंने भी तो किया ना काम। उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया है, इतना काम किया है, तो अब एक नए बंदे को भी जो है ना बारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन खुल के उसको काम करने की इजाज़त ही नहीं मिली है एक साहब की, कि ना ही उन्होंने करने दी है। तो 14 अगस्त पे ना लोगों ने नारा लगाया कि हमें आज़ादी चाहिए, तो क्या अभी भी मुल्क तो आज़ाद है, तो कैसी आज़ादी चाहिए लोगों को? पाकिस्तान को आज़ादी यही चाहिए कि खुद मुख्तार होना चाहिए उनको। खुद मुख्तारी क्या होनी उनके पास, ये अब जो है ना जो बिल वगैरह हैं, पेट्रोल, हर गरीब आदमी जो है ना पिस के ही बैठ गया है। आप खुद समझदार हैं और आपको सारा पता है कि जो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि अवाम कैद है, आज़ाद नहीं है, क्यों? ऐसे ही लगता है कि जो गरीब आदमी है गरीब पर गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर पे अमीर हो जा रहा है, लेकिन गरीब की कोई बात सुनने वाला नहीं है। खान साहब की हुकूमत में भी यही हुआ था, महंगाई कितनी बड़ी थी, तब भी तो गरीब थे ना मुल्क में, ये तब गरीब नहीं थे। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन क्या है कि जो पीछे से करप्शन हुई थी उसको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आने के लिए टाइम तो लगता है कि नहीं, ये बात। तो उसके बाद नून लीग भी आई है, और नून लीग ने देखे लाहौर के काम कितने करवाए हैं, पुल वगैरह भी बनवाए हैं। तो खान साहब ने क्या काम किया है जो आपको लगता है कि वो गरीबों के लिए बेहतर हैं? देखें, पुल बनाए हैं, ठीक है, हमारे गरीबों के अवाम की पैसे हैं, लगाए उन्होंने। अगर 10 रुपये लगाए हैं तो 8 रुपये उन्होंने खाए हैं, 2 रुपये लगाए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी है ना, जो कुछ भी है गरीबों के खून से निकल रहा है, गरीबों का खून पसीना सारा। तो खान साहब ने नहीं किया ये? उसको मौका ही नहीं मिला सही तरीके से उसको। लेकिन ना 3.5 साल कम तो नहीं होते, 3.5 साल। उन्होंने कितनी देर हुकूमत की है? उन्होंने अपनी तकरीबन पहले की थी 4 साल, फिर उसके बाद अब वो 3 मरतबा वो आए उनकी हैं। बारी आ गई है। वो उनको तो एक मरतबा भी 5 साल पूरा मौका नहीं मिला। तो उन्होंने तो नहीं ना खान साहब को कहा था कि लेट आओ सियासत में? वो कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या कि जो अच्छा बंदा होता है ना उसके इर्द गिर्द जो है ना दुश्मन भी बहुत होते हैं, बस ऐसा ही है कुछ साथ था। तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी के दिन के बाद क्या पीटीआई और उनके वर्कर्स को आज़ादी मिलेगी? मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो अकेला है। उसके साथ सब जो है ना नून लीग के साथ जितने भी हैं सब करप्शन वाले बंदे हैं, और जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ भी जो नीचे वाला तबका था वो करप्शन कर रहा था। और जब उन्होंने देखा नीचे कि ये करप्शन कर रहे हैं, तो वो भी जो उनके वर्कर थे, पाकिस्तान है ना, ये कह रहे हैं कि जी जो कुछ भी है बस हमारे घर में आ जाए। लेकिन आप भी मानते हैं कि उनके बंदों ने भी करप्शन की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन की तो थी ना, करप्शन कम की रहा है, ज़्यादा की रहा है, करप्शन तो करप्शन। अगर करप्शन की थी ना तो उसको फिर आगे उन्होंने बंदों को आने नहीं दिया इमरान खान साहब ने। कौन से बंदे हैं वो? मैं नाम नहीं ले सकता, ना मुझे पता है, खबरें मैं सुनता हूँ रोज़ाना ही, जो है ना कोई ना कोई नई खबर ही आती है। तो आपको क्या पीटीआई का फ्यूचर ख़त्म होता नज़र आ रहा है या नून लीग का? फ्यूचर तो मुझे पीटीआई का नून लीग का नज़र आ रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर। नहीं, अभी भी वो पावर है पाकिस्तान के। कौन? नून लीग भी पावर तो है, पावर तो रहेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि जो हक इमरान खान को मिलना चाहिए ना वो ज़बरदस्ती से ले रहे हैं। तो आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे आगे भी? बिल्कुल ऐसा ही है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और उनकी राय ली। अभी भी कुछ लोगों की खान साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो चाहते हैं कि खान साहब को रिहाई मिले, और उसके अलावा उनका कहना है कि पीटीआई आगे ज़रूर आएगी और पीटीआई का मुस्तकबिल ख़त्म नहीं हो रहा, नून लीग का ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा करप्शन की। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।